Good morning everybody. In the last video clip we have discussed about how we can compare the two number. Means in that topic we have discussed that we are comparing means we are just finding that which number is greater and which number is smaller. So we have done the comparison between only the two numbers. Okay. Now today we are going to just learn arrangement of numbers in ascending and descending order. So what we have to study in this topic, try to understand, there are so many numbers will be given to you. Suppose you can see, suppose 5 by 2 minus 3 by 2, and likewise so many numbers are given to you, and you have to just arrange the number in ascending order or descending order, or in both, in ascending order or in descending order. Now first of all, try to understand the meaning of the ascending and descending order. Ascending order means, suppose you can see the diagram also have drawn here. Ascending means from smaller to bigger. You can see the arrow is just moving from smaller to the bigger one. So if you wanted to arrange the number in ascending order, so we have to write first the smaller number, then the bigger number, then the bigger number, then the bigger number, then the bigger number, and likewise, है ना. And descending order is just reverse of the ascending order. You can see the arrow is just moving downward. It means first we have to write the bigger number, then the number which is smaller than this number, then the number which is smaller than this number, and likewise, है ना. तो ascending का मतलब होता है छोटे से बड़े में, छोटे से बड़े में, और descending का मतलब होता है बड़े से छोटे में, है ना. तो I hope by the help of this diagram you have understood that what is the meaning of ascending and descending. Ascending order means in increasing order and descending order means in decreasing order. आप बिल्कुल ऐसे याद रखो, decreasing and descending, डी मैच कर रहा है, तो decreasing मतलब बिगर टू स्मॉलर, एंड असेंडिंग मतलब अप ऊपर की तरफ, तो छोटे से बड़े की तरफ, है ना. ओके. नाउ number is given 5 by 2 minus 3 by 2 minus 1 by 2 3 by 2 and minus 2 by 2. So I have to just arrange all the number in the ascending and descending order both. Okay, so first of all I have just written all the numbers 5 by 2 minus 3 by 2 minus 1 by 2 3 by 2 minus 2 by 2. Okay, now in this question what you see that the denominator of all the numbers are same 2. So when the denominator of all the numbers are same, then these type of arrangement is very easy arrangement. You can just do just arrange it in very easy manner. Okay, so how we are going to arrange it, try to understand. So for arranging I have just taken the help of a number line. So I have just drawn here 0 plus 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5, this side minus 1 minus 2 minus 3, likewise. Okay, so first we are going to just mark the number where the numerator numbers are there. 5 is there, so I'm just marking here 5. Now minus 3, so minus 3 is here, minus 3. Now if only we have to compare the two number, I told you that whichever the number is in the right side is the bigger. So from these two, if I wanted to I wanted to just find that which number is greater, so 5 is greater than minus 3. Now see here minus 1, तो minus 1 कहाँ है, यहाँ पे minus 1 here, minus 1 is here only. Now you see 3, अब देखो 3 कहाँ पे है, प्लस 3 है, यहाँ पे प्लस 3 है, फिर क्या है माइनस 2 है, तो माइनस 2 है. तो ये सारे नंबर को मैंने नंबर लाइन में मार्क कर लिया. ठीक है, अब देखो कि मैंने आपको बताया था कि नंबर लाइन में जो राइट साइड में होता है वो ग्रेटर होता है और लेफ्ट साइड में स्मॉलर होता है. तो इसका मतलब अगर आप देख सकते हो तो सबसे ज्यादा ग्रेटर सबसे राइट में ये है, तो सबसे 1 नंबर पे आएगा, मतलब सबसे ग्रेटर ये है. सेकंड नंबर पे ग्रेटर ये है, थर्ड नंबर पे ग्रेटर ये है, फोर्थ नंबर पे ग्रेटर ये है, और फिफ्थ नंबर पे ग्रेटर ये है. ठीक है, अगर मुझे इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, देखो असेंडिंग का मतलब क्या बताया था, स्मॉलर टू बिगर. तो सबसे स्मॉलर क्या होगा, 3 माइनस 3 वाला, तो मतलब माइनस 3 by 2, ये सबसे छोटा होगा. इससे ग्रेटर क्या होगा, माइनस 2 by 2, देखो माइनस 2 by 2. ठीक है, इसके ऊपर क्या होगा, माइनस 1 by 2, माइनस 1 by 2. उसके बाद फिर क्या होगा 3 by 2, फिर क्या होगा 5 by 2. तो देखो ये असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा ये, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा और उससे बड़ा. ठीक है, अब आता है डिसेंडिंग, फ्रॉम बिगर टू स्मॉलर. तो आप देखो कि मैंने इसे जस्ट लिखा है, सबसे बड़ा तो ये है, फिर उसके बाद ये जो है इससे छोटा है, और फिर ऐसे डिक्रीज कर रहा है. तो सबसे ग्रेटर तो 5 वाला नंबर हुआ, तो सबसे बड़ा नंबर हुआ 5 वाला. ठीक है, 5. अब इससे छोटा कौन सा है, 3 by 2, और 3 by 2 से छोटा कौन होगा, माइनस 1 by 2. माइनस 1 by 2 से छोटा क्या होगा, माइनस 2 by 2, और माइनस 2 by 2 से छोटा कौन होगा, माइनस 3 by 2. तो ये असेंडिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग में, और ये डिसेंडिंग ऑर्डर में. ठीक है, एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं. अरेंज minus 2 by 3 minus 5 by 6 comma 1 in tier 1 by 2 0 and 1.2 in ascending and descending order. अब ये सारे नंबर्स है, इसको भी मुझे ascending और descending order में अरेंज करना है. ठीक है, देखता हूं कैसे बनता है ये. -2 by 3 -5 by 6
1 इंटीयर 1/2, 0 और 1.2। अभी सारे नंबर्स जो है इनको हम प्रॉपरली लिख लेते हैं। तो -2/3 और -5/6 तो प्रॉपर ही है, लेकिन ये देखो मिक्स फ्रैक्शन में है और डेसिमल में है, तो उसका डेसिमल को रिमूव करेंगे और इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो अब देखो -2/3 -5/6। अब ये जो पार्ट आप देखा था, आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसको अगर मैं कन्वर्ट करूंगा तो कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2 और 1 3, कितना आ जाएगा ये 3/2, और ये कितना आ जाएगा, डेसिमल रिमूव करूंगा तो 12/10, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 3/2 में, ये तो 0 ही रह जाएगा। 0 है तो कुछ भी नहीं, नीचे मैं खुद से 1 लिख देता हूं, क्योंकि 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज ऑलवेज 0, ठीक है। और यहाँ 12/10, तो आप देख सकते हो नंबर्स को, -2/3, -5/6, 3/2, 0/1 और 12/10, डेसिमल रिमूव किया था तो 10 हो गया था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इन सारे के जो डिनोमिनेटर्स है वो बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है। तो अगर डिनोमिनेटर अगर डिफरेंट है, तो अगर मुझे अरेंज करना है असेंडिंग और डिसेंडिंग में, तो सबसे पहले मुझे डिनोमिनेटर्स को सेम करना होगा। तो डिनोमिनेटर को हम लोग सेम कैसे करते हैं, एलसीएम लेकर के। तो यहाँ पे 3, 6, 2, 1 और 10 का एलसीएम लेते हैं, 3, 6, 2, 1 का। तो 2 से डिवाइड करता हूँ, ये 3 यहाँ पे ऐसे ही रह गया। 6 को डिवाइड किया 2 से तो 3 टाइम्स, ये 1 टाइम्स और 5 टाइम्स। फिर 3 से डिवाइड करता हूं, ये 1 टाइम, ये 1 टाइम, ये 1 है और ये 5 ऐसा आ गया। फिर 5 से डिवाइड करता हूं, 1 1 1 1। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 5, तो 3 2 जा 6, 6 5 जा 30। तो इसका मतलब ये सारे जो डिनोमिनेटर्स में नंबर है उनका एलसीएम कितना है, 30 है। तो अब मेरे को सारे की जो एलसीएम है जो 30 आए हैं, तो सारे जो नंबर्स दिए हुए हैं सारे का डिनोमिनेटर को मैं 30 में कन्वर्ट करूंगा। कैसे वो देखता हूं। देखो पहला नंबर क्या है, -2/3। अब -2/3 में डिनोमिनेटर 3 है। अब देखो 3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा कि 30 पहुंच जाए, तो 3 10 जा 30 होता है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मैं 10 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो -2 इंटू 10 -20 और 3 इंटू 10 30 आ गया, ठीक है। सेकंड नंबर क्या है, -5/6, -5/6। अब देखो आप 6 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 30 आ जाए, तो 6 5 या 30 होता है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 5 से, तो -5 इंटू 5 -25, 6 5 जा 30, ठीक है। अब क्या है, 3 इंटीरियर 3/2 है, तो 3/2 है, तो 3/2 में देखो डिनोमिनेटर अभी क्या है 2 को कन्वर्ट करना है 30, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 30 आ जाएगा 15 से, क्योंकि 15 2 या 30 होता है। तो 3/2 इंटू 15/15, ठीक है। अब 3 इंटू 15 कितना आ जाएगा, 15 3 या 45, और 2 इंटू 15 कितना हो जाएगा 30, ठीक है। लास्ट, उसके बाद देखो लास्ट नंबर 0/1, सॉरी सेकंड लास्ट है 0/1, तो 0/1 और 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, वो 30 आ जाएगा 30 से, तो 30 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करो, 0 इंटू 30। अब 0 से कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही होगा, और 1 इंटू 30 तो ये हो गया 30, ठीक है। अब यहाँ पे देखो लास्ट नंबर क्या है, 12/10, 12/10। अब 10 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, वो 30 आ जाएगा 3 से, तो ऊपर नीचे मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 12 3 है 36, 10 इंटू 3 30। तो अब देखो सारे नंबर्स, आप देखो सारे नंबर्स का जो डिनोमिनेटर है अब वो 30 आ चुका है, 30 आ चुका है। अब मेरे लिए बहुत इजी होगा फाइंड करना कौन सा नंबर ग्रेटर है कौन सा नंबर स्मॉलर। तो मैं हेल्प लेता हूँ नंबर लाइन का। सबसे पहले मैं पुट करता हूँ 0, तो यहाँ पे 0 आ गया। अब एक एक करके नंबर फाइंड करता हूँ, तो -20, न्यूमरेटर -20 है, -20 तो इधर ही होगा, तो चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे -20 मैंने लिख दिया इसको, ठीक है। फिर क्या है, -25, तो -25 तो -20 के बाद ही होगा, क्योंकि हम लोग नेगेटिव नंबर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, -1 -2 -3 -4, फिर वैसे पहले -20 आएगा, फिर -21 -22 23 24 25, तो फिर क्या आएगा -25 यहाँ पे आएगा, 20 के बाद ही आएगा -25, ठीक है। 45, तो 45 प्लस में है, तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ 45, ठीक है। फिर क्या आता है 0, तो 0 यहीं पे बीच में है, 0 है, ठीक है। और फिर 36, तो 36 तो आपको 45 से पहले आएगा और 0 के बाद आएगा, तो आप कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको 36 आएगा, मैं 36 लिख देता हूँ, ठीक है। अब मैं सारे को मार्क कर लेता हूँ एक एक करके, मैं सारे नंबर्स को मार्क कर ले रहा हूँ नंबर लाइन पे, मार्क कर लिया मैंने इसे, ठीक है। अब देखो मैंने बताया था जो एक्सट्रीम राइट में होता है वो सबसे ग्रेटर होता है और एक्सट्रीम लेफ्ट में सबसे स्मॉलर होता है, और बाकी के नंबर वैसे डिक्रीज में होते हैं। मतलब सबसे ग्रेटर नंबर ये होगा 1 नंबर में है, ये 2 नंबर में है, ये 3 नंबर में है, ये 4 नंबर में है और ये 5 नंबर में है, ठीक है। अब आपके लिए बहुत ईजी होगा इसको अरेंज करना, असेंडिंग या डिसेंडिंग। तो सबसे पहले असेंडिंग देखते हैं, असेंडिंग मतलब स्मॉलर टू बिगर। तो सबसे स्मॉलर कौन सा है, -25 वाला नंबर। तो -25 वाला का एक्चुअल नंबर क्या था, -5/6। तो आप क्या लिखोगे, -5/6, ठीक है। अब इससे ग्रेटर कौन है, -20 वाला नंबर। तो -20 वाला का एक्चुअल नंबर क्या है, -2/3। क्या लिखोगे, -2/3,
ठीक है। अब उससे ग्रेटर कौन है, जीरो वाला नंबर। तो जीरो वाला नंबर एक्चुअल में क्या था, वो तो जीरो ही था, आप इसको जीरो ही लिख दोगे। उससे ग्रेटर कौन था, 36। तो 36 वाला एक्चुअल नंबर क्या था, 12/10। तो 12/10 का एक्चुअल नंबर क्या था, 1/2 था, ठीक है। फिर आता है 45 नंबर। तो 45 नंबर इसका क्या एक्चुअल नंबर था, 3/2, और ये मिक्स फ्रैक्शन में था, ये क्या था, 1 इंटीजर 1/2। तो ये देखो मैंने इसको अरेंज किया है किस ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में जस्ट इसका रिवर्स लिख दो, क्योंकि ये स्मॉल टू बिग है तो मेरे को डिसेंडिंग में बिग टू स्मॉल लिखना होगा। मैं क्या लिखूंगा, 1 इंटीजर 1/2, फिर उसके बाद आप क्या लिखोगे, 1.2, फिर क्या लिखोगे, 0, फिर क्या लिखोगे, -2/3, ठीक है। फिर उसके बाद सॉरी, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, साइन थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, आई एम सॉरी फॉर दैट, है ना। इसको साइन चेंज करना होगा। देखो ये 1 इंटीजर 1/2 था, 1 इंटीजर 1/2 था। अब इससे जो स्मॉलर नंबर था 1/2 था, ठीक है। फिर इससे स्मॉलर नंबर कौन है, 0। फिर इससे स्मॉलर नंबर कौन है, -2/3, ठीक है। फिर इससे स्मॉलर कौन है, -5/6। तो ये मैंने किस में अरेंज किया, डिक्रीजिंग में। ये सबसे बड़ा है, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में। और ये किस में था, इंक्रीजिंग ऑर्डर में था। तो आई होप आप समझ गए होंगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग कैसे इसको अरेंज करते हैं, ठीक है। आई एम जस्ट गिविंग यू फ्यू मोर क्वेश्चन, सम क्वेश्चन आर फ्रॉम योर एक्सरसाइज ओनली, दिस विल बी योर होमवर्क। थैंक यू।